Okay, so let's start. So good morning everyone. So this is second day of your demo for Azure Cloud. Okay. So जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, we are going to cover AZ103 and AZ104 content, right? So today's topic, I will take little bit theory as well as practical. Okay. So any question, any confusion, what we have learned yesterday, if somebody is having, you can just raise your hands before we start our day two, or it was clear. Okay, so nobody is replying, so I consider it was clear. Still, if you have any concern, you can contact me. Okay. Sorry to interrupt, Shailesh. Yeah. Amit here. Morning. Yes, Amit, go ahead. So, as I am also in Nisha ma'am's class for AWS, so whenever we create any machine like Linux or Windows, so there is a flag for if we have a free account, so we can only create the free tier machine. So there is also any feature or any property if we have free account, so we can only create the free machines in Azure. No, in Azure it's not such free things, but Azure itself it is giving. See, so what is the difference between AWS and Azure? AWS is giving you like kind of free account. They are not asking for any kind of credit card for validation, right? But Azure का आप subscription create करते हैं, right? So that time you need to give your credit card information. जैसा कि मैंने कल आपको बताया, only 2 rupees is going to deduct and 13,000, trust me, it is big amount they are giving. Means आप आराम से जितना भी आपका प्रैक्टिकल करना चाहें, you can done 2-3 times your practical. But yes, Okay. it is a 1 month validity, so that you need to finish within 1 month. And pay as you go also, if you want to continue, you can continue because उसमें भी आपका कोई ज़्यादा charges नहीं लगता है. Immediately you need to delete your resources, right? So the moment you delete your resources, you will not face any problem. Okay, right. Yeah. Thank you. So guys, maybe today there are new guys has joined this one. So So yesterday we have asked the question, what is the mode you guys are preferring in terms of like either it's pure English or Hindi English mix. So yesterday majority of people said Hindi and English mix. So today I just want to check because sometimes people from South, sometimes people out of India is joining the session. So I just want to check, is there any concern? Can we use the same mode Hindi in English, or somebody is there who can only understand English only? Yeah, Mona. Sorry, Kamini. Yeah, Kamini, can you ask your question? Let me check if you Uh, are. Yeah. Hello. Yes, Kamini, go ahead. Sir, actually, I want to know that Azure supports serverless application like DNS and all. Yes, yes. So जितने भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, everything is supported by Okay. Azure, right? That's the reason nowadays Mhm. everything it's moving to Azure or AWS. So all kind of so I will actually it's good question. आज का जो मैं डेमो आपको शेयर दिखाने वाला हूँ, that is serverless only. Mhm. Okay. Okay. So I will give you more detail about your question in when we will do the practical. Okay. But it is Okay, perfect. sir. It's good Okay. question. What we are going to demonstrate today, it is serverless. Okay, I have Okay, no sir. knowledge. So Piyush is asking, I have no knowledge about cloud or any IT field. Is it useful for me because I'm from KE? Okay, engineering. So Piyush, definitely means it depends on you. Yesterday also I have discussed about related to career. So I will just park this kind of question the end of our session related to your career.
related to your which mode you want, like you want to go for networking or server or cloud. So I'm just parking your question for end of the session. Just remind me after that. So I'll definitely answer your question because I just want to finish that content now. And then yesterday also almost we have spent very good time, around more than half an hour about your concerns related to career and job. Okay. So hope this is okay. So let's me move and stick with our agenda. All right. So guys, today we will discuss about little bit theory and then we will do the lab. So कल हम लोगों ने understand किया था कि why we need cloud. There are n number of benefit I have show you why people are moving to cloud. डोंट वरी दोज आर ज्वाइंड टुडे. जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा है दैट इंटायर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट with scratch by Monday or Tuesday when we are starting. Mostly we are starting this batch from Monday, right? So Monday को मैं पूरा जो कल पढ़ाया है, जो आज पढ़ाया है, वो फिर से एक बार होगा, बट थोड़ा डिटेल में होगा, right? So don't worry in case if somebody is missed and somebody is joined today. So introduction we have done. Student introduction we cannot do because lots of you guys are there. So once we those guys are going to register, we will do the introduction in first day. Training schedule and etiquette. So training schedule I have told you guys like sharp 9 a.m. I used to start, and exact 10:30 I'll stop the training. The etiquettes like switching off, not switching off means muting your WebEx as well as your phone calls, and then these are the etiquettes you need to do. In terms of any question, concerns, you definitely raise your question in between. I would suggest so that anything which is in your mind, we can clear it out during the session, right? So let's do these three topics today, right? Which is related to theory, and then we'll do the practical, and then we'll go for your questions, right? So cloud computing can be referred to as the storing and accessing of data over the internet rather than your computer hard drives. जैसा कि मैंने कल बताया था, why I am repeating some of the thing, because there are lots many people in this group has joined today only. They haven't finished yesterday. So maybe some people you feel that is it is repeating. Okay. So this means like as I mentioned, we are using cloud in many ways, like Google Drive we are using, then Gmail we are using, then YouTube we are using. These are all our cloud-based application, right? But when we are talking about Azure and AWS, right, it is generally we are referring as a public cloud where we are using our servers and applications, right? So basically, as I told you, only Azure and AWS, these two is leading the market, right? Advantages I have discussed yesterday, and I am repeating flexibility, right? Within 2 minutes, you can create your VM, which I shown you that it took time, maybe 3 month, 4 month time to create a server in a normal corporate environment. Scalability. सो जब हम लैब करेंगे ना, तो आपको इसमें एक स्केलेबिलिटी का भी एक प्रैक्टिकल रहेगा. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. लेट्स आई थिंक इट वाज इकोइंग between. So I'll take you one classic example. Let's say we can take the example of Oyo, right? So when Oyo started, they started very small company, right, with some of apartments and all. Then they have grown like anything. They have spread all across India. Now they are having US and UK also. So जब उन्होंने start किया था, तो maybe they have started with one single server, right, over the cloud. The moment they see that lots of people are booking and it's the entire application and it is popular not only in India and even outside India. So automatically जितना आपके सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता है, वैसे वैसे आपको सीपीयू मेमोरी की जरूरत पड़ती है, राइट?
सो वो उसके लिए आप पहले क्या करते थे, पहले आप लोड बैलेंसर यूज करते थे एंड यू आर क्रिएटिंग मोर सर्वर। सो कैसा होता था, आई विल जस्ट क्रिएट यू क्विक डायग्राम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो पहले क्या होता था, पहले आपका एक सर्वर होता था, ठीक है, ये समझो आपका डाटा सेंटर 1 समझ लो इसको, आपका डाटा सेंटर 2 हो गया, राइट। तो इस टाइप के आपका, ये आपका सर्वर 1 हो गया समझो, राइट, ये आपका सर्वर 2 हो गया, right? So why these two? Because each and every big company or small company, redundancy is very very important. In case entire this data center is down, so आपका जो application वो down नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से चलते रहना चाहिए, right? So there are companies, big companies, they are having even third data center also, right? So और इसके बीच में आपका एक लोड बैलेंसर होता है, इज कॉल्ड लोड बैलेंसर। तो जो आपको आईपी मिलता है, लेट्स से oyo.com, तो वो जो आईपी रहता है वो लोड बैलेंसर का रहता है गाइस, ठीक है। आप अभी भी आप जब यूज करते हो google.com, तो वो किसी एक सर्वर के ऊपर नहीं हिट होता है, गूगल के मोर देन 1000 सर्वर्स है, राइट। सो आपका जब google.com करते हो ना आप, वो लोड बैलेंसर के ऊपर हिट होता है। लोड बैलेंसर फिर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर्स के ऊपर, लाइक दिस, राइट। फिर उसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स है, ये भी हम पढ़ेंगे। लोड बैलेंसर भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी आने वाली लैब्स में, कि किस टाइप से लोड बैलेंसर काम करता है, कैसे यहाँ पे। तो हम पूरा एक एप्लीकेशन बनाएंगे हमारी आने वाली लैब्स में, डाटा सेंटर 1 में, डाटा सेंटर 2 में दूसरी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट। फिर उसके बाद में लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे, उस एप्लीकेशन को लोड बैलेंसर के साथ में इंक्लूड करेंगे, राइट। एंड देन हम यहाँ पे जो आईपी आएगा, जिसको जनरली विप बोलते हैं, वर्चुअल आईपी, उस वर्चुअल आईपी को हम जब हिट करेंगे ब्राउजर पे, कहीं से भी आप कर सकते हो, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर मोबाइल, तो वो पहले इनमें से किसी पे एक पे जाएगा, राइट। एंड द मोमेंट इफ यू आर शटिंग डाउन दिस सर्वर, ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर स्विच हो जाएगा, सर्वर 2 के ऊपर, राइट। सो पहले क्या होता था, इस टाइप से आपके सर्वर्स रहते थे, फिजिकल सर्वर। नाउ क्या होता था कि जैसे आपके कनेक्शन इंक्रीज हुए, आपके कस्टमर इंक्रीज हुए, इनके ऊपर लोड्स इंक्रीज होने लग गए। सो आई जस्ट टेक द, जैसे इनकी कैपेसिटी 500 की थी, इसकी भी 500 की थी, कनेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट आपके तो एट ए टाइम ये 1000 कस्टमर को सर्व कर सकते थे, राइट। द मोमेंट आपका लोड इंक्रीज हुआ, राइट, द मोमेंट आपका लोड इंक्रीज हुआ, आपका ये मान के चलो कि आपके 250 और 500 कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं, सो यहाँ पे आपको स्लोनेस आने लग जाएगी। आप कभी भी फील करते हो किसी वेबसाइट में बहुत स्लोनेस आती, कई बार आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कारण यही रहता है कि आपका जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी फुल होती जा रही है, राइट, या उसकी मेमोरी एंड सीपीयू यूज हो रहे हैं पूरे। सो दैट्स द रीजन इट इज स्लोइंग डाउन। सो उस केस में क्या होता था, पहले पहले हम इसमें एक और सर्वर ऐड करते थे, ठीक है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, फिर इसको भी हम लोग लोड बैलेंसर से ऐड कर देते थे, राइट। सो इस टाइप से सर्वर आप बनाते थे, उसको रेक में लगाते थे, फिर उसमें ओएस इंस्टॉल करते थे, फिर आप उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे, फिर उसकी टेस्टिंग करते थे, राइट। सो नंबर ऑफ स्टेप्स जो थी आपकी 6-7 स्टेप होती थी। अभी क्या होता है, अभी आपको ये सब कुछ नहीं है, राइट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपने ये क्लाउड के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाया, राइट, आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बना रहे हो यहाँ पे, ये एप्लीकेशन को आपने लोड बैलेंसर के साथ में अटैच कर दिया एक तरीके से, ठीक है। अब जिस इसके ऊपर लोड बढ़ा, सर जो ये सर्वर 1 है, राइट, जैसे ही सर्वर के ऊपर, सॉरी, इसका कैपेसिटी समझो 1000 कनेक्शन हैंडल करने की है, जैसे ही इसके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, सीपीयू मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक सर्वर इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक स्केलिंग है इसमें। सो दैट इज द ब्यूटीफुल फीचर ऑफ क्लाउड। सो कल हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट वाइज इट इज वेरी वेरी चीप, एंड सेकंड वेरी ब्यूटीफुल फीचर इज स्केलेबिलिटी। आपको कहीं पे भी जाकर रैक पे सर्वर नहीं लगाना, ओएस इंस्टॉल नहीं करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना, टेस्टिंग नहीं करना, ये सारी चीजें। तो इससे क्या हुआ, आपने ये 5-6 स्टेप्स आपने जो रिमूव करी, इससे आपकी इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। See, guys, when I am telling you the words, a very very important for corporate, right?
व्हेन आई एम सेइंग इफिशियंसी, तो आपको समझना चाहिए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। इफिशियंसी मतलब आप कुछ जो स्टेप्स है उसको ऑटोमेट कर रहे हो, राइट। सो ये वर्ड्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So when you are going for interview, you should use this kind of word. I think I need to request one of you guys to mute. I'm not sure. So Rohit, can you please mute yourself? Okay, thanks. So, what we are doing? So we are reducing those steps. It means we are doing what? We are doing automation. ऑटोमेशन से क्या होगा, आपकी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट सेव हो रही कहीं ना कहीं, राइट। हमने कल भी देखा था कि 5-6 बंदों का जो प्रोफाइल है वो एक ही बंदा कर लेता था, फिर आपका ये जो पूरा इंटायर डाटा सेंटर का रियल एस्टेट कॉस्ट, कूलिंग एंड अदर थिंग्स, ये सारा सेव हो रहा, तो आपका कॉस्ट सेव हो रहा है। देन आपका आएगा सिक्योरिटी, सो विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी लेटर, राइट। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं। सो आपने देखा कि जैसे ये सर्वर पे लोड बढ़ते जाएगा ये इंक्रीज होते जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, सो दिस आई एम गोइंग टू शो यू व्हेन वी आर डूइंग वीएम स्केलिंग प्रैक्टिकल या लैब गोइंग फॉरवर्ड। सो उसमें हम एक वीएम बनाएंगे। उस वीएम में हम कुछ एप्लीकेशन एक है जो डाउनलोड करके डालेंगे उसमें, एंड उसमें उस एप्लीकेशन के थ्रू हम सीपीयू एंड मेमोरी इंक्रीज करके दिखाएंगे आपको। so that is kind of we are doing like simulation of let's say load in the server, कि सर्वर पे लोड बढ़ रहा है। तो जैसे ही सर्वर पे लोड बढ़ते जाएगा, जब आप पोर्टल पे आएंगे, जब यहाँ पे पोर्टल पे आपको जब वीएम दिख रहा होगा ना, वो वीएम ऑटोमेटिकली एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, ऐसे क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। एंड जैसे ही हम सर्वर के ऊपर जाके उसको स्टॉप करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो वीएम्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। सो दैट स्केलिंग of VM also we are going to show you. So that is related to scaling. Apart from that, security. So as I mentioned, there are lots of benefit in terms of security, right? So security जो topic है, security में क्या है? Security में आपका है data security is top, right? And then information security. So दोनों ही आ जाता है उसमें। So data center data security means आपका जो क्लाउड में जो डाटा होता है वो so let me show you how it works in the cloud, right? So आपका समझो ये क्लाउड है, राइट। समझो दिस इज एज्योर। आपने एक वीएम बनाया, तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। रीजन्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जियोग्राफिकल लोकेशन। सो इंडिया में एज्योर के 3 रीजन है, राइट। और वैसे ही यूएस में है, यूके में है। सो आपने कोई भी एक वीएम यहाँ पे क्रिएट किया, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन वीएम इन मुंबई, राइट। सेम टाइम पे उसका एक रिप्लिका आपका पुणे में भी क्रिएट हो जाता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू। सो एक ऑप्शन है कि आप उसको बैकअप लो और उसको रीस्टोर कर सकते हो इन केस अगर आपका वीएम डाउन होता है। सो एक आपका फीचर हो गया बैकअप एंड रीस्टोर। अगेन दैट इज आपका डाटा सिक्योरिटी से कंसर्न है उससे, राइट। डाटा सिक्योरिटी हो रहा है आपका वहाँ पे। सेकेंड, आपका अगर ये वीएम डाउन हो गया तो सेम डाटा सेंटर में भी आपका वीएम क्रिएट रहता है, राइट। तो अगर ये डाउन हो गया, इस रेक, ये रेक पूरी डाउन हो गई समझो, सो आपका इस रेक से चलता रहेगा। लेट मी जस्ट क्लियर लिटिल बिट मोर इजी फॉर यू गाइस। सो एज्योर में भी क्या होता है, समझो ये आपका एक रेक है। कहाँ पे है ये मुंबई में एक रेक है समझो, ठीक है। एक रेक मुंबई में, सेम डाटा सेंटर में एक और रेक है। यहाँ पे इस टाइप से हार्डवेयर होगा कहीं ना कहीं इस क्लाउड में, आपको तो क्लाउड ही दिखेगा, बट समवेयर क्या हो रहा है, समवेयर आपका बैकग्राउंड में तो हार्डवेयर ही है ना कहीं पे। तो आपको जब दिखेगा वो आपको समझो कि इस टाइप से क्लाउड है ये, राइट। आपको तो क्लाउड पे ही दिख रहा है। आप क्या करोगे, आप तो यहाँ पे जाओगे पोर्टल में, यहाँ पे आप वीएम क्रिएट कर लेते हो, राइट। सो जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देखोगे, बैकग्राउंड में आपका कहीं ना कहीं ये आपका एक डाटा सेंटर है, राइट। मैं इसको एज ए कंसिडर कर रहा हूँ मुंबई, ठीक है। ये आपका रैक है, ठीक है। रैक आप लोगों ने देखा होगा, नेटवर्क रैक जो होता है या सर्वर रैक होता है,
अदरवाइज हमारी जो क्लासेस है उसमें हम रैक भी दिखाएंगे। ठीक है, ये रैक 1, ये रैक 2 विद इन सेम डाटा सेंटर, मुंबई डाटा सेंटर। वहां पे समझो कि ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, ये हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में आपके नंबर ऑफ वीएम्स क्रिएट हो रहे हैं। जो आपने वीएम यहाँ पे बनाया, कहाँ पे, पोर्टल में, यहाँ पे आपने वीएम बनाया, वो कहाँ पे जाके क्रिएट हुआ, समवेयर मुंबई। क्योंकि आप जब वीएम क्रिएट करते हो तो आप रीजन देते हो, रीजन आपने जैसे मुंबई दिया, तो मुंबई में जो भी उसका जब वैलिडेशन करता है वो किसी भी एक रेक में आपका वीएम क्रिएट कर देगा। सो कहीं पे एक छोटा सा उसने वीएम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। द मोमेंट यू आर क्रिएटिंग वन वीएम हियर, ऑटोमेटिकली वन वीएम ही विल क्रिएट इन सेकेंड रैक। ठीक है, विद इन सेम डाटा सेंटर। तो क्या होगा कि मुंबई में ही किसी एक और रैक पे वो एक और वीएम क्रिएट कर देगा। तो इनकेस अगर ये वीएम डाउन हो जाता है तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक स्विच कर देगा VM2 के ऊपर, एंड ऑटोमेटिक उसकी रिकवरी और उसका अलर्ट वलर्ट होगा, एंड देन दे विल रिकवर, यू विल नॉट बी नोइंग कि आपका कुछ इशू हुआ है। ओके, सो दैट इज अगेन ए सिक्योरिटी। Third security, uh, basically like in terms of OS, you don't need to be worry about your licenses and all. Everything is licensed here. Number one. Number two, patching of your system you can do yourself, or you can ask Azure. They can do it, right? So that is also there. Antivirus updates, everything you can do the automation here, and you will get report, right? So these are the security features are there in the Azure cloud. So right now, you know that physical firewalls होते हैं, उसके पीछे आपकी applications होती है, right? So corporate environment में किस टाइप से होता है? So I hope this is clear guys for you. Like रैक 1 रैक 2 में आपका किस टाइप से रिडंडेंसी होती है, एक वीएम में, एक वीएम आपने यहाँ बनाया तो ऑटोमेटिकली वीएम यहाँ बन गया। ये तो हमने बात करी DC1 की, राइट? आप अगर चाहो कि ये मुंबई के अलावा मेरा एक वीएम कहीं और भी बने, so that is also possible in Azure. So that is another feature. थर्ड फीचर क्या हो गया कि मैं इस वीएम का बैकअप ले लूंगा स्टोरेज पे मेरा, राइट? मेरे स्टोरेज पे इसका बैकअप ले लिया, कल को मेरा ये वीएम पूरा डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो मैं वहां से रिस्टोर करूंगा, राइट? सो दिस आल्सो वी आर गोइंग टू डू इन आवर लैब्स। हम एक वीएम बनाएंगे, हम उस वीएम को डिलीट करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड देन हम रिकवर करेंगे। ठीक है, so I will show you another feature of security, how security is working in normal corporate environment, right? So this is your internet, right? तो corporates में क्या होता है, सबसे पहले एक राउटर होगा जिसके ऊपर आपने एक लीज लाइन लेके रखी होगी, राइट? वैसे जनरली टू होता है, दो राउटर होंगे, राउटर 1 राउटर 2। जहां पे भी आप किसी कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो एवरीथिंग विल बी टू, जस्ट बिकॉज फॉर रिडंडेंसी। किसी भी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई विल जस्ट गिव यू क्लासिक एग्जांपल ऑफ एनी बैंकिंग, राइट? आप अगर किसी भी एक कॉर्पोरेट या नेशनलाइज्ड बैंक की बात करो, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से SBI, सो उनका एक दिन में थ्रू ऑनलाइन पोर्टल मोर देन 10,000 CR के ऊपर ट्रांजेक्शन होता है। कितना? 10,000 CR के ऊपर, राइट? उस 10,000 CR के ऊपर उनका जो भी कमीशन बनता होगा वो मोर देन 1,000 CR के ऊपर बनता है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी फिगर। सो जहां 1,000 इफ वी कंसीडर, इससे ज्यादा ही रहता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो 10,000 CR भी अगर उनका कमीशन बनता है, तो ये जो इंटायर हार्डवेयर जो लग रहा है उनका डाटा सेंटर में, SBI.co.in या जो भी उनका एप्लीकेशन है, उसका पूरा मेंटेनेंस और उसका पूरा हार्डवेयर, ये विद इन 2 दिन से ज्यादा का भी उनका कॉस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कॉस्ट है ये उनके लिए पीनट्स से है, किसी बिग बैंक के लिए या किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो IT कॉस्ट फॉर देम इट्स वेरी वेरी मिनिमल, राइट? तो इस टाइप से आपके पास में राउटर्स होते हैं, उसके बाद में आपका एक फायरवॉल होता है, राइट? एंड देन आपका नीचे कोर स्विच होता है, राइट? एंड देन आपका फिर यहाँ पे सर्वर्स होते हैं, राइट? DMZ होगा, वो होगा। सो दीज आर द थिंग इंटायर आर्किटेक्चर यू कैन क्रिएट इन Azure। ठीक है, so that entire thing you can create firewall। अगर आपके एप्लीकेशन के यहाँ पे लोड बैलेंसर है तो यू कैन क्रिएट लोड बैलेंसर,
इंटायर ये जो VLANs आप सेपरेट VLANs क्रिएट करना चाहते हो तो दैट आल्सो यू कैन क्रिएट इन Azure. Whatever you are doing in your physical data center, can do everything in Azure. Okay. So now we'll talk about, let me go back, increase productivity, because आपने देख लिया स्केलेबिलिटी हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होएगी ही होएगी, राइट. Now we are talking about cloud deployment model. So basically दो टाइप के deployment model है, right? उसमें आपका हो गया एक तो सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग में दो मॉडल हो गए, एक डिप्लॉयमेंट मॉडल और एक सर्विस मॉडल. डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपके तीन हो गए हैं, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. वन मोर मॉडल इज देयर विच आई विल टॉक लेटर, राइट. सो पब्लिक क्लाउड में क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड में एवरीथिंग इज इन योर इंटरनेट, राइट. आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड. हाइब्रिड में आपका मिक्स हो गया. कैसा होता है हाइब्रिड क्लाउड, आई विल जस्ट शो यू हियर. तो आपके पास में समझो ये क्लाउड है, राइट. अब आपने समझो एक नया छोटा सा आपका, लेट्स से यू आर स्टार्टअप, you don't want to invest anything in your office, you don't have even office also, right. I met many of startup guys, startup guys, they are very very clear in their mind, they don't want to invest anything in your in their office, they want everything in cloud, so which is very very good, right. तो समझो ये क्लाउड है, उन्होंने समझो सो उन्होंने एक एप्लीकेशन बना ली क्लाउड पे, राइट. नाउ सो ये आपका जो क्या हुआ, ये प्योर पब्लिक क्लाउड हो गया, मतलब आपने जो भी किया है वो सारा पब्लिक क्लाउड पे है. इसका एग्जांपल आप जीमेल वीमेल जो है सारा आपका पब्लिक क्लाउड पे है, राइट. पब्लिक क्लाउड. अब आपने ये एप्लीकेशन समझो एज्योर पे बनाई है. अब आपको चाहिए कि आपका ऑफिस में एक्टिव डायरेक्टरी है, ऑफिस में एक्टिव डायरेक्टरी है. अब आपको ऑफिस के एक्टिव डायरेक्टरी से इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है. ये आपका एडी है यहाँ पे, और इस सर्वर को इंटीग्रेट करना है, राइट. एक तो ये ऑप्शन हो गया. दूसरा आपको क्या जरूरत पड़ सकती है, आपने ये प्लान किया है आपके आर्किटेक्ट ने कि आपका जो डाटाबेस होगा वो इन हाउस होगा, और आपका जो सर्वर होगा, वेब सर्वर जो होगा, वो क्लाउड पे होगा, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट. सो ये आपका हो गया इन प्रीमाइस, ये, राइट. और ये हो गया आपका क्लाउड पे. सो दिस इंटायर थिंग्स कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है. इंटायर थिंग इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है. अब प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ, प्राइवेट क्लाउड में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने एक बार प्राइवेट क्लाउड बनाया था फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हम लोगों ने सो क्लाउड क्या होता है, आई विल जस्ट गिव यू लिटिल बिट बैकग्राउंड हाउ हार्डवेयर इज वर्किंग बिहाइंड दिस, राइट. जस्ट शो यू, इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस. कैसे क्लाउड बैकग्राउंड में वर्क करता है अभी हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट. फिर विल कम बैक अगेन ऑन पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड. तो जैसा मैंने बताया था कि आपका ये आपका, और आप कैसे प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करते हो, राइट. ये आपका डाटा सेंटर है, ठीक है. डाटा सेंटर के अंदर आपकी रैक्स हो गई, नंबर ऑफ रैक्स, राइट. ये एक रैक हो गई, ये दूसरी रैक हो गई. उस रैक में आपने एक सर्वर डाल दिया, राइट. ये सर्वर आपने जो लिया है वो हायर कैपेसिटी का सर्वर लिया है. यू कैन क्रिएट मोर देन 100 VMs इन दिस सर्वर, ओके. ये आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट. आप फिजिकल सर्वर के ऊपर नंबर ऑफ VM क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. तो ये था आपका सेकेंड फेज. ये कैसे क्लाउड में कन्वर्ट हुआ, राइट, ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, राइट. सो कैसे ही क्लाउड में कन्वर्ट हुआ, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट VMware, सो VMware में क्लाउड डायरेक्टर करके एक एप्लीकेशन बनाई. तो VMware ने पहले क्या करा, पहले तो फिजिकल बॉक्स को उसने, पहला जो उसका आविष्कार था आई कैन से, उसने फिजिकल बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ VMs क्रिएट किए,
राइट। सो ऐसे 100 वीएम क्रिएट करने लिए उसने एक हार्डवेयर में। तो ये सबसे पहले चीज किया उसने। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो हुआ, एवरीबडी वाज लाइकिंग, राइट। फिर उसने सोचा ठीक है यार, व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट, राइट। तब क्लाउड स्टार्ट ही हुआ था, मतलब लाइक एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू इसको किस टाइप से हम पब्लिक के लिए भी यूज करें, राइट। सो उसने जो है VMware क्लाउड डायरेक्टर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो बनाया। तो उसमें क्या होता है, so ये जितनी भी आपकी रेक है, ये तो मैंने आपको दो बताई, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसमें मोर देन 100-200 रेक्स होती है। तो ये सारे जितने भी रेक्स को उसने एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो किया, कॉन्फ़िगर किया, और उसका नाम दे दिया VMware क्लाउड डायरेक्टर। ठीक है। अब वो VMware क्लाउड डायरेक्टर क्या करता है, उसके पास सारे सर्वरों का, फिजिकल सर्वरों का इंफॉर्मेशन है, किसकी कितनी कैपेसिटी है। आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ पोर्टल दिखेगा VMware क्लाउड डायरेक्टर का। एक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ओके। आपको सिर्फ यहाँ पे वेब ब्राउजर दिखेगा। आप यहाँ पे जब जाओगे, जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन, राइट। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ऐड वर्चुअल मशीन किया था हमने कल, आज और करेंगे, राइट। तो ऐड वर्चुअल मशीन किया, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में ये वर्चुअल मशीन यहीं पे किसी पे क्रिएट हो रही है। बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट रन होती है, वो स्क्रिप्ट रन होके यहाँ पे वीएम क्रिएट होता है। ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो ये जो क्लाउड डायरेक्टर जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू सारे आपका डाटा सेंटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर है उसको मैनेज होता है। और आपको पोर्टल दिखेगा, आप पोर्टल में आपको समझो यहाँ पे वीएम ऐड करने का एक टैब आ जाएगा, आप क्लिक करोगे, वो आप उसमें सारा डिटेल्स डालोगे, कि कौन सा ओएस चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से आपका एक स्क्रिप्ट रन होगी यहाँ पे। वो यहाँ पे पहले तो चेक करेगा कि ये आपके पास में सीपीयू मेमोरी इस क्लस्टर में अवेलेबल है या नहीं है। और आपने यहाँ पे भी कल मैंने दिखाया था कि वो वैलिडेशन करता है पहले, जो भी आप बोलते हो, राइट, जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो वैलिडेशन होता है, तो वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन में सेम चीज होती है। वैलिडेशन में चेक होता है कि यहाँ पे उस रैक में या उस डेटा सेंटर में उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है। जैसे ही वो कैपेसिटी होती है वो ग्रीन करता है, एंड देन आप सबमिट का बटन प्रेस करते हो, तो यहाँ पे वीएम क्रिएट होने लग जाता है, राइट। सो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में है वही रेक्स, वही क्लाउड है, वही सर्वर्स है, वहीं पे पावर भी लग रहा है। बट ये सात चीजें आपको इंडिविजुअली पे नहीं करनी पड़ रही है, राइट। यू आर जस्ट पेइंग हाउ मच टाइम यू आर यूजिंग, राइट। बट अगर आप यही चीज आपके डाटा सेंटर में रखते हो, तो आपको कूलिंग का भी पैसा देना है, आपको सर्वर का भी पैसा देना है, उसका एएमसी का भी पैसा देना है, उसका पावर का भी पैसा देना है, उसका यूपीएस मेंटेनेंस, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू पे, राइट। सो दैट इज द बैकग्राउंड हाउ क्लाउड इज वर्किंग। सो क्लाउड क्या हुआ, एक तरीके का एक एप्लीकेशन हो गया, पर बैकग्राउंड में आपका वीएम से ही क्रिएट हो रहे हैं किसी फिजिकल हार्डवेयर में। ये मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंपनी VMware का क्लाउड डायरेक्टर यूज कर रही है। गूगल का जो पूरा प्रोडक्ट है, because I have worked with Google Cloud also, so Google is using entirely different, they have their own mechanism, they have their own algorithm, right। इवन उनका जो सर्वर होता है, वो सर्वर भी उनका खुद का बनाया होता है, उसका जो चिप्स होते हैं, वो सारी चिप्स लेवल पे उनका खुद का कमांड होता है, राइट। so they are doing totally different। so let me go back to our slide। तो हम थे हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मैंने आपको समझा दिया किस टाइप से। पब्लिक क्लाउड में आपका वेब एप्लीकेशन था, और आपका प्राइवेट जो आपका ऑफिस है वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी या डाटाबेस था। उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, सो आपका हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है, राइट। प्राइवेट क्लाउड भी जो मैंने आपको बताया, ये जो पूरा इंटायर डिजाइन है, ये मैंने आपको बताया क्लाउड के लिए, राइट। अगर आपको किसी कंपनी में आपको बोला कि मेरे को प्राइवेट क्लाउड चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप एक या दो रेक लोगे आपके डाटा सेंटर्स में। उसमें आप HP, IBM या डेल, किसी का भी एक अच्छा सर्वर लोगे जिसमें, सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिकेशन, आपको कितना VMs क्रिएट करना है, किस टाइप का स्केलेबिलिटी चाहिए, राइट। सो आप क्या क्रिएट करोगे, आप वही चीज लोगे, हार्डवेयर लोगे, फिर उसके ऊपर VM का क्लाउड डायरेक्टर लोगे। या इनफेक्ट आई रिमूव VM क्लाउड डायरेक्टर एट दिस मोमेंट। आप एज्योर को बोलोगे कि सी आई वांटेड ए प्राइवेट क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट के बंदे आएंगे, आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देंगे, क्या आपको हार्डवेयर लेना है। एज्योर का जो सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आपको देंगे।
आप एवरीथिंग यू विल क्रिएट, जो यहाँ पे दिख रहा है ये समझो कि आपके ऑफिस में आप क्रिएट करोगे। आपका रैक रहेगा, रैक में इस टाइप से दो सर्वर लग जाएंगे। उस ये सर्वरों को आप दोनों को एज्योर क्लाउड डायरेक्टर के साथ में इंटीग्रेट कर दोगे। तो जब आप देखोगे तो आपको दिखने में आपके ऑफिस में सेम पोर्टल दिखेगा, right? Right now I am using what? I am using as portal.azure.com, which is public one. That's the reason we are saying public cloud, right? बट सेम चीज आप आपके डाटा सेंटर में क्रिएट कर सकते हो, राइट? अब क्वेश्चन आएगा कि जब पब्लिक में ही मेरे को ये सब मिल रहा है तो व्हाई आई एम गोइंग टू यूज प्राइवेट? इज गुड क्वेश्चन. There are some organization, those are doing research, those are in BFSI sector. When I am saying BFSI means banking and finance, right? So they still having resistance to use cloud. So वैसी जो company है, there are some defense company which I have worked. They don't want anything on the cloud. They are, so if I'll talk about our defense, they are like very strong. They are having everything whatever we are talking about. You talk about any cloud, so they are all certified people, and they are having every kind of information about the latest technology, right? So I can say they are even one step behind us, right? So आप जब देखते हो कि आर्मी जो अपने को दिखता है कि जो ऑलवेज फ्रंट पे होती है, so they are not always fighting, right? There are entire division, those are managing their IT, and they are very skilled people. Okay, so let me go back. So hope you understand public cloud, hybrid cloud, private cloud, right? Then we are having service model. We have infrastructure as a service, right? We have platform as a service. Then we have software as a service, right? So let me quickly show you here one more option, which is community cloud. So हमने यहाँ पे क्या देखा? Public, hybrid, private. Community cloud आप लोगों को बहुत से कम लोगों को पता होगा, but this is also nowadays very popular. ठीक है? तो पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड में एज्योर, AWS, गूगल, ओरेकल, VMware, राइट? तो ये आपका पब्लिक क्लाउड हो गया जहाँ पे एवरीथिंग यू कैन यूज एज ए पब्लिकली. हम जो यूज कर रहे हैं ये पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, राइट? फिर प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ? मैंने आपको क्लियरली बताया ये डायग्राम में. इंटायर थिंग्स इन योर डाटा सेंटर. आपको पोर्टल दिखेगा, वो आपका कुछ आईपी रहेगा, आपका लोकल आईपी रहेगा, राइट? बट यू कैन सी सिमिलर पोर्टल विच वी आर यूजिंग. हाइब्रिड क्लाउड जो हमने डिस्कस किया कि आपका कुछ वीएम आपने पब्लिक क्लाउड पे बनाया और कुछ आपके सर्वर्स जो हैं वो आपके प्राइवेट में है, सॉरी आपके इन हाउस है, और उसको इंटीग्रेट कर दिया. दैट इज हाइब्रिड क्लाउड. कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? सेवरल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट मी ट्राई टू जूम इट फॉर यू गाइस. Several organizations with similar background share the infrastructure and related resource, right? तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन वन, ऑर्गेनाइजेशन बी. सो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन है, समझो दो बैंक हैं, अगर उनको इफ दे आर हैविंग लेट्स से, सो आपको पता होगा कि बैंक्स में क्या क्या चीजें होती है. आप जब भी आपका अकाउंट ओपन करते हो तो आधार वेरिफिकेशन होता है, राइट? आप जब लोन लेते हो तो क्या होता है कि आपका सिबल एंड अदर क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं. अगर आप कॉरपोरेट बैंक्स की बात करते हैं तो आपका रिस्क लेवल, रिस्क चेक किया जाता है कि रिस्क की एप्लीकेशंस होती है वो उसमें चेक करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी या आपके नाम पे कोई फ्रॉड या आपके कोई इस टाइप की इश्यूज तो नहीं है, राइट? सो दोज आर द वेरी कॉमन एप्लीकेशन. अगर आप बैंक ए की बात करेंगे तो वो भी सेम एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा. बैंक बी की बात करेंगे तो वो भी, लाइक देयर आर हंड्रेड बैंक्स, दे आर यूजिंग द सेम. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, ओके? फिर या तो हो सकता है कोई रिसर्च कंपनी है, दे आर हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आपने जो 1 2 3 करना है हमने भी वो 1 2 3 करना है. सो आप भी वो हार्डवेयर और वो सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं. व्हाई डोंट वी कोलाबरेट? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हम लोग वो कर लेते हैं, एंड देन सो दैट इज दे आर सेइंग कम्युनिटी क्लाउड. सो दे आर बिल्डिंग, सो आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जांपल हाउ कम्युनिटी क्लाउड इज वर्किंग, जहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन जिसका infrastructure they want to share, that is called community cloud. Okay. So
So I will just skip this. Anyway, we are going to discuss this in our day one classes. I will skip SaaS and all. I will directly, so I will just take example of this one because SaaS everybody is using, right? Software as a service. So जैसे मैंने आपको बोला, आपका Google, right? So Google क्या हुआ? Google आप मेल यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो? पब्लिक क्लाउड में यूज कर रहे हो, so which is called as a software as a service. आप दूसरा क्या कर रहे हो? आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, राइट? पहले क्या होता था, आप कंप्यूटर लेके आते थे या लैपटॉप लेके आते थे और उसमें ऑफिस इंस्टॉल करते थे। अब क्या होता है, अब आपको ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ऑफिस 365 पे जाइए, वहाँ पे आप लॉग इन पासवर्ड डालिए, जो भी उसका चार्ज है वो पे कीजिए, एंड जस्ट यू डाउनलोड ऑन योर सिस्टम एंड यू कैन यूज ऑल द फीचर्स। बट जो भी आपका सेव होगा वो वन ड्राइव पे से सेव होगा, विच इज ऑन अगेन क्लाउड, राइट? सो दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ SaaS बेस्ड एप्लीकेशन। ट्विटर क्या है? SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है। फेसबुक, फ्लिपकार्ट, पेपल, these are all is सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसको सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना है तो आप ये इस टाइप से अंडरस्टैंड कीजिए कि आप गूगल को कोई कुछ पे नहीं करते हो, राइट? आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, राइट? बट यू आर नॉट पेइंग for any hardware which Google is using, right? So you are just using software, right? ये तो फ्री सर्विस हो गई एक तरीके से, राइट? बट देर आर कपल ऑफ एप्लीकेशन लाइक आपने, सो आई विल टॉक अबाउट मोर इन डे वन। बेसिकली लाइक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस नाउ एक टूल होता है जहाँ पे आप आपके आईटी से रिलेटेड इंसिडेंट लॉग करते हो, राइट? सो वो आपको आपके ऑफिस में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो आप क्लाउड पे एक्सेस करोगे। सो सर्विस नाउ आपका एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का XYZ, राइट? एंड देन आप उस XYZ और का जो क्लाउड पे क्रिएट हुआ है आपका इंस्टेंस, उस इंस्टेंस से आप वहाँ पे आपका टिकट लॉक कर सकते हो, राइट? So that is, and for that they are going to charge. So that is software as a service. So you are not paying anything or you are not building any hardware for ticketing system in your organization, right? Then second example, HR से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती है। सो पहले क्या होता था, पहले हर कंपनी में एक HR का सर्वर होता था, फाइनेंस का एक सर्वर होता था, राइट? सो दो सर्वर तो कॉमनली यूज होते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बट नाउडेज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज इन क्लाउड। सो वर्क डे हुआ या सेल्स फोर्स जैसी एप्लीकेशन हुई, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं, आप क्लाउड पे सब्सक्रिप्शन ले लो, उसका जो चार्ज है वो आप पे कर रहे हो। सो व्हाट यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर ओनली, and you are paying for only software, you are not paying for any hardware and all, right? So that is called SaaS. सेकेंड हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या हो गया कि आप, सो आई विल शो यू दिस डायग्राम, इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? सो पहले जो हमारा होता था, सारी चीजें इन हाउस होती थी बिफोर क्लाउड। जब क्लाउड नहीं आया था तो हमारा एप्लीकेशन, डाटाबेस, मिडिलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग किसी एक रैक में या एक किसी डाटा सेंटर में होता था, राइट? फिर हमारा क्लाउड आया तो क्लाउड में हमारे पास तीन फीचर्स आए या तीन मॉडल्स आए। कौन कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है? तो आपको ये तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, ये बिफोर क्लाउड, एवरीथिंग इन इन प्रीमाइस। दूसरा मैंने अभी जो डिस्क्राइब किया आपको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसमें आपका सारा जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट? सो आपका जो भी होगा, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जैसे ऑफिस 365, इट इज मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप क्या कर रहे हो, आपके डेस्कटॉप पे जाके आप आउटलुक को यूज कर रहे हो, राइट? You are not paying for any hardware or you are not managing anything in terms of paying तो छोड़ दीजिए, you are not managing or you are not controlling any hardware in this, right? When we are talking about platform as a service, right? So यहाँ पे आपको थोड़ी सी flexibility है, right? If you want to manage your so यहाँ पे application आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वहाँ आपको लिमिटेड ऑप्शन है चेंज करने का। बट अगर आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड में लिया, माइक्रोसॉफ्ट को बोला प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सो ये जो नीचे की ग्रीन ऑप्शंस है ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। नेटवर्क वो मैनेज करेंगे, स्टोरेज वो मैनेज करेंगे, वो मैनेज करेंगे। व्हेन आई एम सेइंग इट मींस यू विल बी हैविंग एक्सेस बट दिस एंटायर थिंग इन देयर कंट्रोल। what you manage your application and data, right? So this is called platform as a service. So आपका यहाँ पे
आपके डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल है, यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फिर आया आपने बोला नहीं मेरे को तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा कंट्रोल चाहिए, सो दे विल से ओके देन यू गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो उसमें आपका एप्लीकेशन एंड डाटा पे है आपका, रन टाइम मिडिलवेयर पे भी आपका है, प्लस आपका ओएस के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू, उसका सिक्योरिटी हम मैनेज करेंगे, बट रेस्ट अदर थिंग लाइक क्लाउड पे है तो वर्चुअलाइजेशन हो रहा होगा तो वो हमको जरूरत नहीं किस टाइप से उसमें वी मोशन या जो भी हो रहा है, सर्वर्स स्टोरेज एंड नेटवर्किंग दिस इंटायर पीस इट इज मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट। अब आप बोलोगे कि यार जब मेरे को ये चीज मिल रही तो व्हाई आई एम गोइंग टू बॉदर माई सेल्फ एंड यूज दिस थिंग, विच इज कॉमन क्वेश्चन। तो गाइस दोज आर लाइक स्मॉल कंपनी, जब ओयो ने भी स्टार्ट किया होगा दे डोंट हैविंग इवन आईटी गाइज इन देयर कंपनी, राइट। दे मे बी हैविंग सम आर्किटेक्ट जिन्होंने उनका पूरा एप्लीकेशन क्लाउड पे डिजाइन करके दिया होगा। दे जस्ट वांट कि मेरे पूरा एप्लीकेशन क्लाउड पे बना दूं एंड देन आई विल गिव एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। बट after some time they might feel ki nahi I need some control on my data, I wanted to change xyz thing, I want some more customization, right. So then they are going for the platform as a service, maybe from scratch also you know that nahi I don't want entire everything is managed by Microsoft, I want manage my application and data and rest other thing let Microsoft manage. Some of the company they want to their OS, they want to do antivirus update, they don't want to believe on Microsoft, I can say. So then in those situation you are going for infrastructure as a service. Okay. So before I move on our practical, so these are the things clear for you guys. So today we have understand what is the benefit of cloud, right? Flexibility, scalability, security, increase productivity, right? And then हम लोगों ने understand किया कि cloud के क्या क्या options हैं, like infrastructure as services, software as services, platform as services, right? So ये थोड़ा theory था, maybe it is little boring for some people, but it is very very important for your interview purpose. आपके इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहीं से, उसके बाद में आपको टेक्निकल पूछेंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ हम थ्योरी कम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, बट दीज आर द वेरी बेसिक एंड any interviewer they will start questioning from here only, right. So hope it is clear for you guys. Before I move to our lab, so I just want to quickly check, and this is the pattern of my classes. I before I move any lab or any thing, I just check with my guys that they are clear or not. Okay, so you can raise your hand or you can ask in the chat if anything you want till here, or if it is clear, then I will move to lab. Okay, so I cannot see any raised hand, so I hope you guys are understood. Okay, and here also in the chat there is no question. Okay, Sir, yeah, Kamini. sir, I have one question. That we move ASS and SAS, TASS according to our requirements. So how we know to use ASS, SASS, and TSS? So right, which is very good question. Anyway, we are going to discuss in our day one class, because if I'll if I'll talk more here, then most of the people will be bored. So it's but as you raised, I should tell you. So see, this is depend on your architect, right? How they, and it depends. So, see, let's see if I'll talk about classic example. आपके पास में तीन टाइप की कंपनी होती है, एक होते स्टार्टअप्स, राइट, which is very very new इन द सिस्टम। एक होता है जिनका स्मॉल कंपनी है, लाइक इंदौर में देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी, स्मॉल स्मॉल कंपनी, राइट, दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड सेलिंग, राइट, दोस काइंड ऑफ कंपनी। देयर इज अ कॉर्पोरेट, राइट। So
these three type of companies in the market. जो कंपनी है समझो जिनको दे डोंट वांट टू ब्रेनस्टॉर्म, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग टेक्निकल मच, दे जस्ट सेड यार मेरे को आई जस्ट वांट let's say if they are working on sales related some work, so they will say I just need Salesforce account and on my name my logo should be there and मैं मेरे users create कर सकूं. If in my company there are 15 people, so 15 people का मैं account create कर लूं and when I use let's say if I, so वो कैसे work करता है I will just show you here. salesforce.com/xyz इस टाइप से वो आपको बना के दे देंगे. XYZ इज योर कंपनी नेम. जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको सेल्स फोर्स का पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन पेज, राइट. वहां पे आपको जो आपने क्रिएट किया हुआ यूजर नेम पासवर्ड जब आपने लिया हुआ है, तो जैसे आप पहला सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एज ए एडमिन क्रिएट करके दे देंगे, राइट. सो आप एज Okay. एडमिन हो, जैसे कामिनी इज एडमिन फॉर सेल्स फॉर XYZ कंपनी. तो जैसे कामिनी आप लॉगिन करोगे आपको ऑप्शंस आएंगे क्रिएट यूजर्स, राइट. सो आपकी कंपनी में अगर 25 एम्प्लॉय है तो आप 25 अकाउंट क्रिएट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट. सो आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, you are not investing any single rupee in your hardware or data center management, you are just investing in software as a service, right. You are using this software as a service, right. So that is the one Okay. requirement. There are thousands of companies that don't want to do all this. They are, in their word they are saying IT juggleries, right. They even not bother, they just उनका माइंड में ही जो रहता है ना वो बिजनेस क्लियर रहता है कि मेरे को ये बिजनेस करना है. आई डोंट वांट टू गो इन ऑल आईटी रिलेटेड इश्यूज, right. I don't want to increase my IT people in my company. So they are very clear, they will Okay. go only for software as a service. Now second company हुई, I'll take the example of brokerage company जो बहुत सारी है. So sometime like they are using let's say moneycontrol.com या Paytm is classic example, right. So Paytm क्या है, Paytm में you can create your account and you are using, so that is a software as a service, right. आप एक तरीके से बैंक ही चला रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, देन यू आर सेंडिंग मनी टू अदर गाइज, राइट. So for those kind of companies, something they want, everything means some of the application they want over the cloud, something they want in premises, or they want control on those kind of application, right. They don't want to give their data. Maybe they are having concern कि मेरा सारा अकाउंट का इंफॉर्मेशन, मेरे कस्टमर का इंफॉर्मेशन cloud provider should not know, right. There are n number of subject, then they are going for infrastructure as a service, right. Sorry, Okay. platform as a service. जहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, जैसे बैंक्स हुई, तो दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एवरीथिंग ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर. वो ये बोलते हैं कि लाइक ठीक है आप मेरे को हार्डवेयर दे दो, रेस्ट एवरीथिंग आई विल मैनेज. मेरे बंदे रहेंगे, आई विल इन्वेस्ट मनी, आई विल हायर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, दे विल डू एवरीथिंग फॉर मी. You just give me hardware. I don't want to invest hardware in my office. Unnecessary, I will invest in my office. Then I have to create a data center. मैंने कल ही आपको बताया था डाटा सेंटर बनाने के लिए आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बिग इन्वेस्टमेंट, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ दैट डाटा सेंटर, राइट. So that is again you need people, procurement people and all, finance people, right. So ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए. I just want कि आप मेरे को हार्डवेयर दे दो, rest everything I will do. I will hire only one guy, he will take care everything, right. So those people are going for infrastructure as a service. ठीक है. Okay. Okay. Just quickly check if there any chat also. No doubt still no. Thanks, Mona. Okay. So guys, let me quickly show you how our practical we are doing, right? So let me take so आपका जो question था, I think Kamini you have asked, right, that serverless application. So this is the Yes, sir. classic example of serverless application.
पहले क्या होता था गाइस, पहले हम लोग, and why I am saying पहले पहले, why I am comparing, because you should very clear in your mind, क्योंकि ये चीज मैं आपके माइंड में इतना रजिस्टर्ड कर दूंगा so that आपको पता रहेगा कि how IT used to work before and now how we are using cloud, right? Why it is important, आपको ये सारे factors इंटरव्यू के टाइम पे बहुत important है. These are the question, the first question, why you want to go for cloud, right? So let's say if I'll talk about web application, right? So आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहा कि आप एक वेब सर्वर बना के दो मुझे, राइट? एंड आई वांटेड टू लॉन्च वेबसाइट. सो आप क्या करोगे, आप एक सर्वर का कहीं से वो करोगे, मतलब यू टू प्रोक्योर वन सर्वर, देन यू इंस्टॉल ओएस इन इट, राइट? देन आपके पास में दो ऑप्शन है ओएस में, कौन कौन से? आपके पास में विंडोज है, देन आपके पास में लिनक्स है, राइट? विंडोज अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में क्या ऑप्शन है वेब सर्वर के लिए? आपको IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा. IIS क्या है? IIS विंडोज का वेब सर्वर होता है, ठीक है? लिनक्स आप कर रहे हो तो आपको अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? ये दो ऑप्शंस हो गए. तो ये सब आपको करना पड़ेगा, एंड देन ये होने के बाद में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? बट आप नहीं चाहते कि मैं ये सर्वर क्रिएट करूँ, मैं ओएस क्रिएट करूँ. आई डोंट वांट टू इंस्टॉल IIS एंड देन एप्लीकेशन. यू वांट सर्वरलेस एप्लीकेशन. आपको क्लाउड पे आपको जाना है, आप जस्ट इंस्टेंस क्रिएट करो ऑटोमेटिकली, बैकग्राउंड में वो जो भी कर रहा करे. आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट ऑल दिस एंड आई वांटेड टू लॉन्च माय एप्लीकेशन वेरी फास्ट. ठीक है? तो दिस इज द, सो हम जब हमारा आने वाले जो प्रैक्टिकल है, हमारे आने वाले प्रैक्टिकल में हम क्लाउड के ऊपर ये सब क्रिएट करेंगे, ठीक है? दैट इज विथ सर्वर वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल दिस, राइट? जैसे मैंने बोला लोड बैलेंसर वाला प्रैक्टिकल में लोड बैलेंसर भी आ जाएगा और IIS भी आ जाता है, ठीक है? हम अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें ये इंटायर थिंग हम लोग सर्वरलेस कर रहे हैं. आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी ओवर द क्लाउड, ठीक है? तो आपको ये दोनों फ्लेवर जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे दोनों फ्लेवर आपको एप्लीकेशन के क्लियर होंगे. सो आप गए यहाँ पे होम, ऐप सर्विस, वेब ऐप, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और इसी टाइप से हमारे लैब भी होती है. सो बिफोर आई गो हियर आई जस्ट टॉक अबाउट क्विकली ऑन रिसोर्स ग्रुप. गाइस, इन एज्योर आप जो भी करते हो, राइट? आप आपने अगर एक VM क्रिएट किया, ठीक है? RG इसको हम बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप. अगर आप VM क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे एज्योर में, तो उसके लिए भी आपको रिसोर्स ग्रुप बताना पड़ेगा कि आपने रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या रखा. आप रिसोर्स ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हो, आप आपका नाम भी रख सकते हो, बट रिसोर्स ग्रुप इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ योर रिसोर्स, राइट? सो आपने VM बनाया, ठीक है? उसको आप जब बनाओगे ना तो आपको रिसोर्स ग्रुप का नाम पूछता है, तो आपको पहले रिसोर्स ग्रुप बनाना रहेगा, ठीक है? फिर अगर आपने यहाँ पे एक, अभी जैसे हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन जब बनाएंगे ना तो उसमें भी वो रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, ठीक है? फिर अगर आप इसमें लोड बैलेंसर बनाओगे, राइट, तो भी वो आपको रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, ठीक है? आप इसमें एक सबनेट बनाओगे, वीनेट या वीलेन बनाओगे, राइट, तो भी आपको रिसोर्स ग्रुप पूछेगा. अगर आप इसमें स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपसे ये रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, ठीक है? इन शॉर्ट ये क्या चीजें हो गई? ये आपकी हो गई रिसोर्स, ठीक है? एज्योर में इसको रिसोर्स कहा जाता है. इट इज एज्योर टर्मिनोलॉजी. जो भी आप क्रिएट कर रहे हो एज्योर में, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. VM, एप्लीकेशन, लोड बैलेंसर, network, either it is a firewall, VLAN, router, whatever, it is your resource. स्टोरेज रिसोर्स होगा, बैकअप जो होगा वो रिसोर्स होगा. सो जो आपको यहाँ दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, ये सारे रिसोर्स हैं. SQL, VM, लोड बैलेंसर, स्टोरेज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट?
एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारे एज्योर के रिसोर्सेस हैं, इसी को हम यूटिलाइज करके अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं, राइट। ये सारे जो रिसोर्स हैं, ये रिसोर्स किसमें किससे कनेक्ट होते हैं, रिसोर्स ग्रुप से कनेक्ट होते हैं, राइट। सो जब भी आप, आपकी जैसे कंपनी XYZ है, राइट, तो आपकी कंपनी ने बोला कि मेरे को एक वीएम बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे। तो वीएम बनाओगे तो आपको रिसोर्स ग्रुप में वो नाम दोगे, वीलेन बनाओगे तो वो रिसोर्स ग्रुप का नाम लोगे, राइट। एंड बेस्ट थिंग, सो ये आपका रिसोर्स हो गया सारे ये, और इसका जो लॉजिकल ग्रुपिंग को हम रिसोर्स ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एनीवे वी आर गोइंग टू रीड दिस इन आवर डे 1 इन डिटेल, कैसे ये काम करता है। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दिया तो आपकी ये सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, राइट। बट ऐसे डिलीट नहीं होता है, इट विल आस्क यू क्वेश्चन वेदर यू वांट टू डिलीट और नॉट, वहां पे आपको टाइप करना पड़ता है तब जाके डिलीट होता है, राइट, ठीक है। बट इन एज्योर एवरीथिंग इज रिसोर्स, एंड इन दिस ऑल दिस रिसोर्स क्रिएट एज अ रिसोर्स ग्रुप। तो लेट मी शो यू, सबसे पहले मैं एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, तो आपको देखो ये टैब का पहला ऑप्शन ही रिसोर्स ग्रुप है इसमें, इसीलिए, ठीक है। सो रिसोर्स ग्रुप, इट इज लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, इट इज जस्ट नेम, हाँ। तो ये रिसोर्स ग्रुप का मैंने नाम दिया RG1। अब मेरे को ये रिसोर्स कहाँ क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, द मोमेंट इफ आई सिलेक्ट ईस्ट यूएस, तो ये इसके अंदर में जो भी रिसोर्स क्रिएट करूंगा ना, वो ईस्ट यूएस में करेंगे, ठीक है। बट चूंकि हम वी आर यूजिंग इन इंडिया, सो विल यूज वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स जो भी हम क्रिएट करेंगे, वो वेस्ट इंडिया मतलब मुंबई में क्रिएट हो रहा है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ डाटा सेंटर है, कैसे चेक करते हैं डाटा सेंटर की लेटेंसी, वो हमारा डे 1 डे 2 के टॉपिक्स हैं। सो इस टाइप से ये रिसोर्स ग्रुप हो गया, कुछ नहीं, इट इज जस्ट नेम, हाँ गाइस, देयर इज नथिंग कि इसके अंदर कुछ हमने डाला है, वीएम डाला है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, इट इज जस्ट ए डमी, इट्स, आई कैन से। अभी थोड़ी देर में यहाँ दिखने लग जाएगा। सो आप जब यहाँ देखोगे ना, सो देखो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड, रिफ्रेश, थोड़ी देर में ये आ जाएगा, ये आपका रिसोर्स ग्रुप आ गया, ठीक है। नाउ आपने देखा कि मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने रिसोर्स ग्रुप 1 क्रिएट किया। अब मेरे को क्या करना है, लेट मी गो टू माय प्रैक्टिकल अगेन, ठीक है। सो जब मैं, मेरे को वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि रिसोर्स ग्रुप चाहिए रहेगा, रिसोर्स ग्रुप हमने बना लिया, अब हमको यहाँ क्रिएट नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं बनाओ तो फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट, राइट। नाउ लेट गो टू वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हो गया एक वेब सर्विस। यहाँ पे आपने ऐड किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाओगे ऐप सर्विसेज, वेब ऐप, ठीक है, यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप का नाम दोगे, एक एप्लीकेशन का नाम दे दोगे, ठीक है। आपको दो ऑप्शन है, आप इसको, थोड़ा मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आइदर यू कैन क्रिएट डॉकर कंटेनर, ठीक है। डॉकर कंटेनर क्या है, डॉकर कंटेनर जो है, एवरीथिंग इट विल बी इन योर कंटेनर, योर ओएस एंड योर एप्लीकेशन, एवरीथिंग विल बी इन कंटेनर। हम अभी कोड सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, हम लोग डॉट नेट का, डॉट नेट कोर डॉट थ्री यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये आपको कहीं देखना है, करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। हम लोगों ने यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट कर लिया, कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, विच एवर, यहाँ पे सेंट्रल यूएस है आपकी स्क्रीन पे, बट यू कैन सिलेक्ट इंडिया, राइट। एंड देन आप रिव्यू के लिए डालेंगे, रिव्यू में अगर ग्रीन हो जाता है तो क्रिएट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, देन यू कैन क्रिएट, ठीक है। सो लेट मी क्विकली गो टू हियर, देखो यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, बट आपने ऑलरेडी बनाया है RG1, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ये रिसोर्स ग्रुप, जितना हमारा ये 1 महीने का क्लास है ना, हम लोग 100 बार रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अब आपने यहाँ नाम दे दिया, आई ट्रेन यू लैब 103, ठीक है। यहाँ पे राइट का निशान आ गया, इट मीन्स ये नाम is there. If you want 10, that is also there. If I'll remove, I think lab I have used before.
बट या इट इज स्टिल देयर, ठीक है। अगर आपका नाम ऑलरेडी यूज है तो देन इट विल से यूज डिफरेंट नेम, ठीक है। सो पब्लिश कैसे करना है इस वेबसाइट को, आइदर थ्रू डॉकर करना है या कोड यूज करेंगे। सो जिनने ये जो टॉपिक है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपके डेव ऑप्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है डॉकर, जिनको एप्लीकेशन आता है डॉकर पे क्रिएट करना, उन लोगों के लिए, बट फॉर अस वी आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर लर्निंग क्लाउड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फॉर हम अस वी आर गोइंग टू यूज कोड, राइट। रन टाइम स्टेक, यहाँ पे हमने कौन सा यूज करना है, हमने डॉट नेट 3.1 LTS करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ गए हैं। सो अगर आप देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप है पूरा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। आपको विंडोज सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि जो भी हमारा लैब है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, आप आराम से कर सकते हो घर पे, कभी भी आप फ्री बैठे रहोगे ना, यू कैन इजिली डू दैट, ठीक है। सो ये सेंट्रल यूएस की जगह मैं इसको वेस्ट इंडिया ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल से क्रिएट, ठीक है। टेम्पररी डिप्लॉयमेंट कुछ एरर आया है, इज नॉट वैलिडेट अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन प्रोसीजर ट्रैकिंग, रीजन क्लोज्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, ओके ओके। चेंज द रीजन बिकॉज रिसेंटली मेरा जो अकाउंट है उसका कुछ इशू हुआ था, तो स्टिल टिकट इज ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट, they are changing the region to US. Let me check if I can create another, this one RG2. I'll take some US location. I'll create RG2. Select central US. Create. Okay, so I'll create central US. It is creating. Okay. So now, so region is created. Let me go back to app service. Add. Now we can see RG2 is here. I'll select this. Select there. Runtime I will select both. Central USA I think I have selected there. So let central. Let me see now. He will allow me to create. Because yesterday only I got email they are facing some issue. So I raised the ticket. So it is submitted and I haven't received any error. ठीक है। सो बैकग्राउंड में आप क्या हो रहा है, देखो इसमें बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आप जो भी आपने पुश किया है कॉन्फ़िगरेशन, ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस ऐसा लिखा आएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ईयर, ये नोटिफिकेशन है, राइट। यहाँ पे आपका सारा नोटिफिकेशन आपको दिखता है। सो जो जो डे वन होगा मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ये मीनू में क्या होता है, फिर यहाँ के जितने भी हैं ये तो हम सब पूरा हमारे पूरे कोर्स में यही है। तो आपको क्लाउड जो है एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट वो पूरा कवर होता है हमारी पूरी 30 डेज की क्लास में, ठीक है गाइस। सो ये आपने डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया, यहाँ पे आपको इस टाइप से ग्रीन होके आ जाएगा, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड। अब जब आप, एक और चीज आपको मैं बताता हूँ बिफोर आई विल शो यू दिस, इफ आई क्रिएट क्लिक ऑन दिस, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड, ठीक है। कहाँ हुआ है, रिसोर्स ग्रुप RG2 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड हुई, इसको जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जेसन की स्क्रिप्ट आई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि बैकग्राउंड में जो भी आप यहाँ पे ब्राउजर बेस पे जो भी आप
करोगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आइदर यू क्रिएट SQL database, you create VMware, you create load balancer। यहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि हाँ ये डिप्लॉय हो रहा है। जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा तो ऐसा सक्सीड होके दिखेगा। जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो इस टाइप से कहीं ना कहीं जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एज अ जेसन स्क्रिप्ट उस डाटा सेंटर में अप्लाई होती है और आपके लिए वहाँ पे रिसोर्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कैसी दिखती है जेसन स्क्रिप्ट, लेट मी शो यू। आपको ये जेसन स्क्रिप्ट आती हो तो परफेक्टली फाइन, नहीं भी आती तो हमारे को कहीं से कहीं तक स्क्रिप्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिया था, लोकेशन स्ट्रिंग एज ए यूएस। ठीक है, तो जो आपने ग्राफिक्स में सिलेक्ट किया वो आपका एज ए स्क्रिप्ट, एज ए जेसन स्क्रिप्ट, देखो यहाँ पे जेसन लिखा है, डिप्लॉयमेंट जेसन स्क्रिप्ट होके आया। ये ITU लैब मैंने लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट। देन आपका RG2 आ गया यहाँ पे। So these are the things which is we can see in script. So जो भी हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो स्टोरेज हो, नेटवर्क हो, वो सारा इसी टाइप से स्क्रिप्ट बनेगा बैकग्राउंड में। और कहीं ना कहीं जिस भी डाटा सेंटर को आपने सिलेक्ट किया है, तो ये आपने समझो कि एक वेब सर्वर क्रिएट कर दिया यूएस, सेंट्रल यूएस में। ठीक है, जब हम बात करेंगे डिटेल में तो आपको बताऊंगा सेंट्रल यूएस में किस जगह पे ये सर्वर है, राइट। तो इस टाइप से मैं इसलिए आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो पोर्टल में, कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्टिंग वे में जाके आपका रिसोर्स क्रिएट होता है वहाँ पे। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द गो टू रिसोर्स। ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या आप यहाँ पे गए, एप्लीकेशन सर्विस में गए, यहाँ पे आपने देख लिया कि आपकी ITU लैब आ गया है, कंडीशन इसकी रनिंग है, लोकेशन US है। ठीक है, और ये इसका सब्सक्रिप्शन एजियोर सब्सक्रिप्शन 1 है। आप जब इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे URL आ गया। क्या URL आया, itulab.azurewebsite.net। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, इंटर मार दिया, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। ठीक है, सो कामिनी आपका जो क्वेश्चन था ना, सर्वरलेस एप्लीकेशन, सो दिस इज द सर्वरलेस एप्लीकेशन। ओके सर। मैं आपने देखा मैंने यहाँ पे कोई VM क्रिएट नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे कोई IIS या अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया ना, मैंने उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन डाली। इमीडिएटली मेरा ये एप्लीकेशन आ गया। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं इसको कैसे वो करूँ, राइट। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पेज को कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका स्टेप्स आप जब देखेंगे ना, तो हमने यहाँ तक फिनिश किया, राइट। मैंने ये क्रिएट रिव्यू तक किया, फिर हम आप जैसे घर पे भी करोगे तो आपको बिल्कुल इसी टाइप से करना है। ये फिनिश किया, फिर आप नेक्स्ट साइड पे जाओगे, राइट। तो यहाँ सब लिखा हुआ है, राइट। फिर आप गए आगे, ये तो ट्रैफिक मैनेजर का है, तो अभी मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें ट्रैफिक ये थोड़ा और एडवांस है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। तो आप एप्लीकेशन कैसे लॉन्च होती है वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, राइट। ये जो है डे 7, उसमें हम लोगों ने किस टाइप से लोड बैलेंस करना है इसको वो सीखेंगे, राइट। तो इसको कैसे चेंज करना है वो भी हमारा शो यू हियर, ये स्टेप्स है, FTP एंड चेंज द कंटेंट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जाओगे, देन यहाँ पे जो इसका FTP का URL है वहाँ जाके आप फाइल्स को चेंज कर दोगे, राइट। इस टाइप से आप लॉन्च करोगे FTP क्लाइंट, वहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे एंड FTP में जाके, तो मतलब एक तरीके से आप वेबसाइट बनाओगे और वेबसाइट में चीजें चेंज करके आपको दिखाएंगे आप जब भी लैब करेंगे। ठीक है, ओके सर। सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हो गया आपका। ठीक है, और यही चीजें हम लोग विद सर्वर भी करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस टाइप से आपका किस टाइप से आपको टेस्टिंग करना है वो सब रहेगा। नाउ गो टू गूगल सर्वर 1, डाउनलोड दिस, यूज FTP क्लाइंट। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप है। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया गाइस, तो इससे मेरे दो पर्पस थे कि किस टाइप से हम लोग सारा जो लैब है वो स्टेप बाय हम लोगों ने कैप्चर करके रखा है, सो दैट फॉर एनीबॉडी इट इज इजी। तो आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, आप आइदर यू कैन सी वीडियो व्हेन यू आर फ्री और यू कैन गो विथ स्लाइड्स। ठीक है, so this is the mode of our teaching।
सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लैब में आपने क्लियरली देखा कि इस टाइप से आपका itulab.azure-website.in क्रिएट हो गया है। FTP के थ्रू आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो। You can put anything, whatever website you have created, and then you can change also if you are procuring any domain, so आप domain भी change करके रख सकते हो यहाँ पे, right? So that's it in terms of lab for today. There are lots of lab, but as we are going in detail, I can show you how this entire application is working. आप अभी ये हमने कहाँ क्रिएट किया? यूएस में क्रिएट किया। इनकेस अब समझो कि हमको let me take you another example of again Google, right? So Google में आप क्या करते हो? Google आप इंडिया google.com करते हो, तो ऑटोमेटिक जो भी आप सर्च करते हो वो गूगल इंडिया में ही सर्च होता है, राइट? जब आप दुबई जाते हो वहां पे आप google.com करते हो तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करता है google.ae। जब आप यूके जाते हो तो ऑटोमेटिकली google.uk में कन्वर्ट करता है। आप यूएस जाते हो तो google.us करता है। वो कैसे होता है? उसके पीछे लोड बैलेंसिंग एंड जियोग्राफिकल लोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं अभी वो डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्हेन वी विल डू दैट इंटायर प्रैक्टिकल आपके लिए इजी होगा। बट वो सारी चीजें भी हमारे इसमें हैं। हम लोग आपको एप्लीकेशन लॉन्च करना बताएंगे। एप्लीकेशन यही इसी प्रैक्टिकल में हम लोड बैलेंसर यूज करेंगे। एक सर्वर हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे यूएस में, एक सर्वर हम बनाएंगे इंडिया में। जैसे ही यूएस का सर्वर डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली यूजर को पता भी नहीं पड़ेगा, वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। तो वो सारा चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो उसमें आपके तीन चीजें क्लियर होती है। आपका सर्वरलेस एप्लीकेशन कैसे लॉन्च होता है, लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जियोग्राफिकल लोड बैलेंसिंग कैसे होती है वो पता पड़ जाता है। क्योंकि लोड बैलेंसिंग हो रही तो आपकी एक तरीके से रिडेंडेंसी भी हो रही है। रिडेंडेंसी हो रही है तो आपका एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी भी हो रही है, राइट? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट यू कैन क्रिएट योर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड। Within 5 minutes, you can configure your load balancer, right? So that's it. So I think Mona has asked some question. Coding will come into the picture after web development, like .NET, Java, written there there at the time of deployment. Yes. So Mona, क्या होता है? So this what we are learning here. So there are three way of like using cloud. आपका एक प्रोफाइल बनता है जो होता है कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हम पढ़ रहे हैं, राइट? जब आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में जाते हो तो आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा। आपको सिर्फ आपका जो मैनेजर होगा वो आपको ये बोलेगा कि मेरे को आप एक इंस्टेंस क्रिएट करके दो यूएस में, जैसे अभी हमने क्रिएट किया, एंड आई वांटेड टू launch application tomorrow morning. Create me one web instance, right? And I need that web instance in Australia. तो आप पूछोगे सर why Australia? Because my client is in Australia, and because my client is in Australia and उनके जितने भी सब्सक्राइबर है they are based in Australia only. So okay, then you are going to create ऑस्ट्रेलिया। सो आप क्या क्रिएट करोगे? आप आरजी क्रिएट करोगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करोगे, एंड देन आप इस टाइप से उनको क्रिएट करके दे दोगे। then what you are going to say to them? You will say, sir, I have created one serverless web application, right? And you ask me to be created in Australia, so that is also ready, right? And this is the URL, sir। ठीक है, इसका FTP का डिटेल्स ये रहा, राइट? यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आप जब जाएंगे तो सब आ जाएगा। हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट हमारी क्लासेस रहेगी। ये आप उनको ईमेल में दे दोगे, ठीक है? सो दैट इज द जॉब ऑफ योर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ आ गया आपका डेवऑप्स प्रोफाइल, जिसमें आपको अगर आपको डेवऑप्स में इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो फॉर दैट। तो उसमें आपका ये सारी चीज तो आपको आना ही चाहिए। साथ में आपको डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो दोज पीपल आर गोइंग फॉर द डेवऑप्स। थर्ड जो हो गए वो प्योर डेवलपमेंट वाले होते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं करना है। दे डोंट वांट टू डू ऑल दिस, दे विल डू only the development related work and little bit they will be having knowledge of infrastructure।
तो वो आपको ये सब चीजें नहीं पूछेंगे, वो आपको बोलेंगे मेरे को जस्ट एफटीपी लोकेशन बता दो, यूजर नेम पासवर्ड बता दो, आई विल डू द कोडिंग एंड आई विल चेंज द कंटेंट हियर, राइट। आप सिर्फ उनको यूजर नेम पासवर्ड दोगे, वो सारा कंटेंट आपका बना के यहाँ चेंज कर देंगे। जब भी उनको जरूरत लगेगी कि उसको सिंगल साइन ऑन करना है या उनको ऑथेंटिकेशन कराना है, अगेन दे विल आस्क यू कि इसको एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट कर दो इस वेबसाइट को, राइट। सो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उसके बेनिफिट हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी में यूज होता है वो, ठीक है। सो वो सब चीजें के लिए सिर्फ आपको डेवलपमेंट प्रोफाइल लगता है, राइट। सो होप दिस इज क्लियर। लेट मी अगेन सी योर क्वेश्चन। Java written three, there is time for the develop, correct? So hope this is clear for you, Mona. हाँ, आपने जैसे डॉट नेट और जावा बोला, तो दीज आर द एप्लीकेशन, लाइक जो वेब एप्लीकेशन होती है वो जावा में भी क्रिएट होती है, डॉट नेट में भी क्रिएट होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर आर्किटेक्ट कैसे आपने बनाया। बट एज ए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर आपको बस इतना ही करके देना रहेगा। ये जो पार्ट है, ये एक तरीके से क्लाउड आर्किटेक्ट का पार्ट है। तो जो क्लाउड आर्किटेक्ट होते हैं उनको ये सब, तो आपके पास में क्या क्या प्रोफाइल ओपन होती है इस कोर्स के बाद में, आपके पास में ओपन होती है नंबर वन, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। आई वुड सजेस्ट आपने 1-2 साल तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एज ए वर्क करना चाहिए। फिर अगर आपका बैकग्राउंड जो है डेव ऑप्स का है, तो धीरे धीरे आपको डेव ऑप्स में भी करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, तो आपका दोनों पर्पस सॉल्व होता है, राइट। मैंने कल ही आपको बताया था कि जिनको डेवलपमेंट में जिनका माइंड नहीं चलता, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नाउ दिस इज न्यू थिंग विच इज डेव ऑप्स, तो आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है, राइट। So another option is DevOps. So जैसे ही आप DevOps कंप्लीट कर लेते हो, देन ऑटोमेटिकली आप एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट थोड़े टाइम में अपने आप को वो करने लग जाओगे, राइट। तो क्लाउड आर्किटेक्ट क्या करता है, क्लाउड आर्किटेक्ट को सब पता रहता है कि कैसे हार्डवेयर एंड यहाँ पे काम करती चीजें, राइट। उसको डेवलपमेंट का भी सब चीज पता रहता है, कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, कैसे जेंकिन्स यूज होता है, कैसे आपका डॉकर यूज होता है, कैसे आपका एंसिबल यूज होता है, राइट। So those things comes under DevOps track, and those are the guys they can go for the cloud architect profile. So cloud architect में application कैसे develop होगी, कैसे आप cloud में जाएगी, वो सारी चीजें as a आपका cloud architect, but वो time लगता है। This is the steps जैसा मैंने आपको बताया। Any other question? So now I am, so it is near about 10:30. So we can spend some time today. So if you have any question related to today's class, number one, you can ask. Number two, about you can ask me the enrollment process and all, or when we are going to start next. Mostly we are going to start on Monday, coming Monday, right? And timing मैंने आपको बता ही दिया, it is sharp 9 to 10:30, right? एंड अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट यस थ्योरी इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्पस एंड फॉर योर नॉलेज पर्पस। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये करके तो मैंने आपको 5 मिनट में दिखा दिया, बट ये क्यों किया, राइट। वो स्टोरी सुनाना भी आपको जरूरी, राइट। आपको मैंने ये क्यों पूरा पिक्चर बताया, मैनेजर आपको बोलेगा, क्योंकि आपको ये सीखने के बाद में आपको टास्क ही इस टाइप से मिलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। So that you will be having theoretical knowledge as well as you will be having practical knowledge. Second, you can ask me question related to your career, related to your track, what should you go. Yes. So I think Amit, how we can get this 2 days classes video and document. So this 2 days classes video, you just contact on this number, Warpreet. She will share with you. I don't have any problem to share with you guys. Okay. Registration process, yes, you need to contact Warpreet. She is the single point of for registration process. She will do the your registration, and she will create WhatsApp group. Those are the guys, those are registered. We will add in WhatsApp group. और जो भी हम, जैसे आज हम लोगों ने समझो ये टॉपिक पढ़ा है, तो आफ्टर द क्लास इमीडिएटली ये स्लाइड आपके पास में आ जाती है। तो इन द डे टाइम और नाइट टाइम यू कैन रिफर क्या हमने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप आप देख भी लोगे ना, तो आपको
क्लियर हो जाता है। और अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप स्टेप बाय स्टेप आप घर पे बैठ के बहुत आराम से प्रैक्टिकल होते हैं। मेरे पास में इन माय लास्ट class there was guy, he was not having anything, he was not having background of IT, he was very new in IT, but उसने trust me एक भी बार कॉल नहीं किया। I was surprised. I thought when I in my first day when he said that I was not having IT background, so I thought maybe this guy is going to ask me every day many questions, but trust me that guy was never asked a single question. तो मैंने लास्ट डे उससे पूछा, मैंने कहा क्यों आपने कुछ भी पूछा नहीं? तो सर आपका प्रैक्टिकल जो थे वो मेरे को वैसे ही प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाते थे, बचा कुचा था तो मेरे को नेक्स्ट डे आप मेरे को स्लाइड भेजते थे तो उसमें मैं देख लेता था और घर पे कर लेता था। उसके बाद में भी अगर मेरे को कुछ नहीं आता था तो जब भी मेरे पास इवनिंग में टाइम होता था मैं वो वीडियो देख के कर लेता था। सो आई नेवर फेल्ट कि मेरे को कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है। So that's the thing, and as since I have done many classes, very rare I get questions in over the WhatsApp or over the call, because most of the things it's very clear in our classes। एक ही चीज को मैं दो तीन बार बोलता हूँ so that it register your mind। Secondly, जो लैब के कंटेंट है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। एंड थर्ड इज योर वीडियोस, एंड फोर्थ इज योर व्हाट्सअप। सो अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, आप घर पे बैठे हो, आपने कुछ क्रिएट कर रहे हो नहीं रहा है, आप परेशान हो गए हो, आपने वीडियो भी देख लिया, आपने स्लाइड भी देख ली, आपको कोई एरर आ रही है, आपने बस फोटो खींचा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। So these are the modes. So irrespective you are sitting either Bangalore or Indore or wherever, you will get your answers. Fees of the course, everything. Sorry, you need to just talk to Warpreet. She's taking care everything, right? So I am just technical. I am just delivering the technical content here. Rest everything will be done by Warpreet. Please hold on to this button. Okay, perfect. Okay, so Ujwal is very quiet today. Hope everything is good, Ujwal. I could not see Vikas. I think he's not well. That's what I came to know. Morning. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, I'm good, sir. Actually, sir, I'm doing both work. I'm doing my office work also. Okay. Okay. Good. So that's it, guys, from my side for today's lecture. Hope it is clear. Means we were interacting last 2 days. Anything related to practical you can ask. You can ask related to course. Before we close, related to your career, your track, because yesterday lots of question was there. We have couple of minutes. Otherwise, yeah. Sir, actually, I'm going through CCNA course right now, but it is not completed yet. So, matlab, should go for Azure also simultaneously, or should complete all the basics like servers and Linux and CCNA? देखो सीसीएनए में अगर आपने आपका तो जो सीसीएनए का पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है ना कामिनी, वो सिर्फ आईपी अच्छा, एड्रेसिंग आ रहा है। तो आईपी एड्रेसिंग अगर ओके। आपने कर लिया है वहां पे, राइट, देन तो फिर आप इसको कर सकते हो। इवन अगर आपने आईपी एड्रेसिंग नहीं भी किया है तो मेरा जो थर्ड डे का क्लासेस रहेगा उसमें मैं बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग वैसे भी करवाऊंगा। ठीक है। तो ये जो ओके। कोर्स जो डिजाइन हुआ है ना, वो कोर्स जिन जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि एक हो गया स्टेप बाय स्टेप, लाइक सीसीएनए, एमसीएससी एंड देन क्लाउड। सो हमारा वैसे भी सीसीएनए का भी क्लासेस चालू होने वाली है, आई थिंक मंडे एंड ट्यूसडे है, राइट। तो जो ओके। those are wanted step by step, which is perfectly fine, which is good for your long term perspective। आपको नेटवर्क का पूरा उसमें ज्ञान आ जाता है, सर्वर का पूरा आपको नॉलेज आ जाता है, एंड देन यू आर गोइंग फॉर क्लाउड, सो यू नो कि बैकग्राउंड में क्या चीजें कैसे वर्क करती है, राइट। But there are Okay. some people they just want to directly enter into cloud, and really it is easy, it's not complex। अगर आप देखोगे तो यहाँ सारा चीजें जो चीज आप वहाँ पे राउटर एंड स्विचेस पे क्रिएट करते हो, जब मैंने आपको कल वीएम क्रिएट कराया था ना, कल मैंने आपको दिखाया नहीं, ऑटोमेटिकली आपका वीलैन भी क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाता है। सो आजकल बहुत सारी चीजें आपकी इसमें ऑटोमेशन में आ जाती है, राइट। पर बैकग्राउंड में वही चीज होती है जो आपके सीसीएनए में हो रही है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम वीएम क्रिएट करके दिखाऊंगा ना यहाँ पे,
तो मैं आपको कोरिलेट करूंगा आपका जो जो कोर्सेस आपने किए हुए हैं। ओके सर, वही एक्चुअली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही थी पहले नेटवर्किंग पूरा कर लेते हैं, क्योंकि फिर कुछ सर्च करके भी पढ़ना होता है काफी डीप में, तो दैट विल बी इजी फिर अगर हम बाद में क्लाउड स्विच करें तो। करेक्ट। नहीं, ये प्योरली डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, राइट? एंड सो it depends purely on your capacity. Like if I'll talk myself, when I went to Hyderabad, so in a day I used to go for three classes: morning CCNA, ओके afternoon NCSE, and evening I used to go. That time Linux was not that much. That time Solaris was there, right? But ओके it was different requirement because I traveled there. I spending money on hotel. I investing money on food, and weather was not that good. So that's the reason I was gone for the fast track. Right? And it depends on your capacity. If you have good grasping and you can grasp fast, you can go for two. If you feel new, I wanted go slow, step by step, which is ओके perfectly fine. We don't have any problem with that. ओके सर, एजुए क्लासेस तो आप ही कंडक्ट करते होंगे ना, इन ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो? Yes, yes. Ozure I'm doing. ओके सर, ओके। Okay, guys. So should we close? Any other question? So I cannot see any raise hand. There is nothing on chat also. Okay. So thanks, guys. So take care yourself, and registration related stuff you can contact to Workpreet, and you have the number, guys. Okay. Take care. Have a nice day and be safe. थैंक यू सर। Thank you. Thank you all.